समराइज़ करूं, अगर मैं समराइज़ करूं एसी जनरेटर को, तो सुनो, एसी जनरेटर में तुम्हें ये आउटपुट मिलता है। ये आउटपुट जब मिलता है जब ये एसी जनरेटर रोटेट करता है, इसका टरबाइन रोटेट करता है। एसी जनरेटर को फाइनलाइज डायग्राम समझने के लिए अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये एसी जनरेटर है एक्चुअली। लुक एट दिस, ये ब्लू वाली जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, सॉरी येलो वाली लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। Is an electric machine that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating electromotive force or alternating current. AC generator works on the principle of electromagnetic induction. फिर ये बात याद रखो, ये जो कॉइल, ये दो S1 और S2, Carbon, one end of ये दो जो यहाँ मैंने मार्क किए S1 और S2, ये S1 और S2 दो क्या हैं? स्लिप रिंग्स हैं। ये स्लिप रिंग्स अपनी जगह रोटेट होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो इस पे ये थी कि कब करंट मैक्सिमम, कब करंट मिनिमम, ये देखना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब करंट की पोजीशन ABCD जब is in a कॉइल की vertical पोजीशन position. वर्टिकल है, कॉइल Part of वर्टिकल है, armature ये AB रट is लो। up and जब part कॉइल CD वर्टिकल is है, down. Part of armature तो AB magnetic and field part lines CD parallel to moves coil parallel है। to the magnetic Coil field vertical, at that magnetic moment. field lines Also, parallel at to that coil। moment, the rate of change of तो magnetic induced flux is voltage और zero. induced current is zero। Therefore, induced EMF is zero. जब कॉइल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल For टर्न the होना first शुरू quarter हो रहा है, ये rotation from t तो wave equals देखें, 0 seconds to voltage t बढ़ रहा over है, 4 seconds, voltage बढ़ part रहा of है, armature AB voltage moves बढ़ रहा down है, and part और CD जब moves कॉइल up. हॉरिजॉन्टल आ गया In this period, induced EMF तो increases from 0 मैक्सिमम to मैग्नेटिक maximum फील्ड value. लाइंस कट, इस वजह In से t over मैक्सिमम 4 seconds, वोल्टेज। armature is in When horizontal coil is position in horizontal, relation to the magnetic field. मैक्सिमम मैग्नेटिक In फील्ड t लाइंस over कट 4 seconds, and rate the of change of maximum magnetic voltage. flux momentarily याद gain कर लेंगे। maximum value. When coil is Therefore, the horizontal, induced EMF at this maximum position magnetic is field lines maximum. cut and the voltage is During maximum। second quarter of rotation from फिर t coil over turn 4 हुआ, seconds फिर coil to t turn over हुआ, 2 फिर coil seconds, turn हुआ। ये part of देखो wave armature कहाँ जा रही है? AB coil moves turn again हो रहा है। down and जब part coil CD vertical moves है। up. In this period, induced तो no EMF magnetic field decreased lines from cut its because it is maximum value parallel। to 0. तो In फिर t over 2 seconds, voltage क्या हो armature गया? again is in Zero। vertical position. Part of armature जैसे ही AB is कॉइल down वर्टिकल को and part पास CD करेगा, is up. ये जो वेव Part of ऊपर armature है, AB and अब part ये वेव CD नीचे moves आना शुरू हो parallel जाएगी। to the magnetic field at that moment. यानी कि अगला सेंटेंस Also, याद at रखें that कि moment, डायरेक्शन ऑफ the rate of वोल्टेज change of पॉजिटिव से magnetic नेगेटिव या flux नेगेटिव से is पॉजिटिव। zero. जब चेंज Therefore, होता induced है EMF is zero. जब कॉइल वर्टिकल को पास करता है। During the third quarter of जैसे ही rotation, कॉइल वर्टिकल को from पास t कर रहा है, over देखो 2 वोल्टेज seconds नीचे, to वेव नीचे जाना 3t शुरू over हो 4 गई। seconds, part of armature AB goes up and part CD moves down. When coil passes vertical In this position, period, induced EMF increases from 0 to maximum value. पॉजिटिव से But in नेगेटिव या this नेगेटिव से period, पॉजिटिव। induced EMF has और जब ये opposite कॉइल polarity. पूरा वन कंप्लीट साइकिल In 3t कंप्लीट करेगा, over 4 यानी कि seconds, कंप्लीट rate of change of 360 magnetic डिग्री flux होगा, momentarily तो gain आपके पास maximum ये value एक वेव but compared to a बनेगी, position और in जो t वेव over 4 बनेगी, seconds. वो basically Induced sine EMF wave gained its कहलाती है। negative value. मैथ्स में अगर Finally, आप during the last quarter of rotation trigonometry from पढ़ें, तो 3t फिर over sine का 4 ग्राफ seconds to पढ़ते t हैं। seconds, part of और ये armature है AB साइन का goes ग्राफ, up. ये साइन वेव कहलाती है। अब मसला ये है कि ये पावर स्टेशन में जनरेटर लगा होता है। अब ये पावर स्टेशन में जनरेटर लगा है, उसने ये वोल्टेज पैदा किया यानी इंड्यूस किया। अब इमेजिन करो, मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बलूचिस्तान की साइड पर ये पावर स्टेशन लगे हुए हैं बड़े बड़े जो बिजली पैदा करते हैं। अब वहाँ बलूचिस्तान से कराची तक, लाहौर तक, इस्लामाबाद तक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे लेकर जाते हैं? थ्रू ट्रांसमिशन केबल, वायर के ऊपर से।
अब अगर किसी को पाकिस्तान में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ट्रांसमिशन केबल पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन केबल पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लो, नोट कर लो, जो आपकी रेलवे ट्रैक है इसके साथ साथ पोल लगे हुए हैं और वो पोल के साथ पूरे पाकिस्तान में ट्रांसमिशन केबल जा रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल कहलाते हैं। जहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिल्कुल आम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जहां बिजली पैदा होती है उसको पावर स्टेशन कहते हैं। पावर स्टेशन से लेके एक शहर दूसरे शहर तीसरे शहर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है थ्रू ट्रांसमिशन केबल, जो कि पोल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। प्रॉब्लम यह है कि जब वो पोल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगी तो रास्ते में फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से, डिस्टॉर्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगी। और अगर एनर्जी लॉस होगी तो जितना वोल्टेज यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है पैदा हो रहा है एम्पलीट्यूड, उतना वोल्टेज शहर तक नहीं पहुँचेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर। सुने गौर से, जहाँ बिजली पैदा होती है यानी कि पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में भी जब बिजली पैदा होती है तो पावर स्टेशन के बाद फौरन एक ट्रांसफॉर्मर लगता है। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, एनहांस करना, एम्पलीफाई करना। जो पावर स्टेशन के साथ ट्रांसफॉर्मर लग रहा है वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, फिर उसको ट्रांसमिशन केबल पे पहुंचाएगा, फिर बिजली एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगी, फिर जब आपके शहर बिजली पहुंचेगी तो फिर तुमने देखा होगा स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे, तुम्हारे घर के भी कॉर्नर पे पीएमटी लगी होती है। देखिए पीएमटी, हर घड़ी के कॉर्नर पर पीएमटी लगी होगी। ये जो पीएमटी लगी है ये ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअली। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये जो आपके घर के कोने पे पीएमटी लगी है, ये पीएमटी एक्चुअली उस हाई वोल्टेज को जिसने बड़े वाले ट्रांसफॉर्मर ने किया था, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करती है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो पावर स्टेशन के करीब लगता है उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर का काम यह है ये देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर, मेरा प्रॉब्लम यह आ गया कि पावर स्टेशन ने बिजली पैदा कर दी, मगर अब मेन काम यह है कि उस बिजली को जो पैदा हुई है ट्रांसफॉर्मर से, पावर स्टेशन ने जो बिजली प्रोड्यूस की है, इंड्यूस की है, उसको शहर तक लाना, मेरे घर तक पहुंचाना। अब मेरे घर तक ऐसी डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, बल्कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस जगह को आप पावर स्टेशन कहते हैं। ये है पूरा स्ट्रक्चर, इसको समझना, ये है मेन। जहां बिजली प्रोड्यूस होती है उसको पावर प्लांट या पावर स्टेशन कहते हैं। सपोज करो पावर स्टेशन ने 12,000 वोल्ट 12,000 वोल्ट यानी 12 केवी पैदा की। ये 12 केवी पहुंचाई जाती है सबसे पहले, ट्रांसमिट होती है किसको? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये कैसे करता है वो मैं बताऊंगा। मेन है पहला काम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? इस 12 केवी के वोल्टेज को बढ़ाएगा। इस 12 केवी का वोल्टेज
12 kV से बढ़ के 400 kV। ये जो 12 kV से बढ़ के 400 kV तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली इसने किया है स्टेप अप ट्रांसफॉर्म। कैसे किया है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ट्रांसफार्मर का काम ही ये है, लो इनपुट वोल्टेज को हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करना। वो हाई आउटपुट वोल्टेज अब ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन केबल में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगी। ये जो मैं आपको पोल बता रहा हूं या जो ट्रांसमिशन लाइन बता रहा हूं, ये आपको मिलेगा रेलवे ट्रैक के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में। वायर बिछा हुआ है जो ट्रांसमिशन केबल है, और इस पे लिखा होगा छोटा छोटा, कभी देखना येलो कलर का बोर्ड लगा होगा, उस पे लिखा होगा हाई वोल्टेज 400 kV 300 kV का वोल्टेज। किसने किया था? ट्रांसफार्मर ने। क्यों किया था? ताकि एनर्जी अगर 12 किलो वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ मेन ट्रांसमिशन लाइन पहुँचते पहुँचते मेरे घर तक वो वोल्टेज कम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे ज़ीरो मिले, घर तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया। तो इसको इन्हांस कर देते हैं। अब जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं लगा सकते। सुनो, किसी ने मुझसे पूछा और बिल्कुल जेन्युइन सवाल था। उसने कहा सर बात सुने, ये एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है तो बीच में तो सुनसान एरिया है, कोई भी गांव वगैरह होते हैं, वो अपने घर में बिजली लाने के लिए इसी ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ लगाकर, कुंडा लगाकर एक तरह से अपने घर बिजली ले जाएं ये वाली। तो मैंने कहा ये वाली बिजली आप यूज़ ही नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कितना है 400, तुम्हें घर में कितना चाहिए 220 वोल्ट। ये तो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लगेगा तो वो तो फ़ौरन ही उड़ जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो मेन ट्रांसमिशन लाइन में कुंडा लगाने का या डिस्टॉर्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका बहुत हाई वोल्टेज है। ये पहुंचा आपके शहर, ये हमारे शहर में लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो नॉर्मली ग्रिड स्टेशन में लगा होता है। के इलेक्ट्रिक का ऑफिस होता है हर एरिया में। अगर आप गुलशन में रह रहे हैं तो गुलशन में के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, फेडरल एरिया में के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, डिफेंस में, बहादुराबाद में, PCHS में, हर एरिया में अलग अलग ग्रिड स्टेशन होता है। वो ऑफिस सब स्टेशन कहलाता है। वो सब स्टेशन क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाता है अपने पास, ताकि मेन ट्रांसमिशन लाइन पहले सब स्टेशन पे पहुंचती है। वो 400 kV को रिड्यूस करके तकरीबन 12 या 13 किलो वोल्ट जो शुरू में था तकरीबन उतना ही पहुंचाता है। मगर अभी मसला ये है कि जो सब स्टेशन ने वोल्टेज बना कन्वर्ट किया है 12,000 या 13,000, वो भी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप रोड पे चले जाएं, रोड के साइड में देखें, किसी स्ट्रीट में चले जाएं, स्ट्रीट के ऊपर साइड में देखें, पोल के ऊपर तार लगे हुए होंगे और वो 3 वायर जा रहे होंगे, ऐसे 3 वायर ऐसे पोल के ऊपर हर स्ट्रीट में। उनमें कोई बीच में लकड़ी का पीस या कोई ऐसा लगा हुआ होगा, लकड़ी का या वुड का बीच में। क्यों भाई, ये क्यों लगा हुआ है बीच में? ये बीच में इसलिए लगा हुआ है कि ये वायर ऊपर वाला नीचे वाले से या बीच वाला ऊपर वाले से जुड़ ना जाए, हवा से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। मेन पोल के ऊपर, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेन पोल के ऊपर, ये बाहर निकल के आप देख लो, जहाँ बैठे हुए वहीं बाहर निकल के आप देख लें, चाहे आप किसी स्ट्रीट में बैठें, गली में बैठें, रोड पे बैठें, कहीं भी बैठें, पोल लगे होंगे, उसमें 3 वायर होंगे ऐसे। ये मेन ट्रांसमिशन लाइन है। ये 3 वायर में बीच में वुड की या लकड़ी की पीस या कोई प्लास्टिक की चीज़ लगी होगी कहीं कहीं दूर दूर, ताकि ये ऊपर वाला वायर नीचे वाले वायर से तेज़ हवा की वजह से जुड़ ना जाए, वरना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
और ये जो पोल से ये जो 3 ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इसमें भी हाई वोल्टेज होता है, 12,000 या 13,000 केवी। ये पोल से वायर जाता है एक दूसरे ट्रांसफार्मर में जो आपके पास हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे लगा हुआ है, पीएमटी। ये पीएमटी फिर उस 13 केवी वोल्टेज को मज़ीद कम करती है। ये लगी हुई पीएमटी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है सब स्टेशन में, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है तुम्हारे घर के कॉर्नर पे जो पीएमटी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ सेंटर के बाहर निकलो, कॉर्नर पे देखो, ये गुलशन कैंपस है, अगर कोने पे ऊपर पीएमटी लगी है। नॉर्थ में देख लो और बाहर निकलो कैंपस से, कॉर्नर पे रोड पे कराची ब्रोस के साथ पीएमटी लगी है। जौहर में देख लें आप, कैंपस से बाहर निकले स्ट्रीट के कॉर्नर पे रोड के साथ ही पीएमटी लगी है, सब जगह लगी हुई। अगर तुम अपने घर में ये टॉपिक देख रहे हो तो घर से बाहर निकलो, उस स्ट्रीट में साइड में देखना, राइट या लेफ्ट पे वायर चल रहा होगा, उस वायर को फॉलो करते जाओ, पोल के साथ साथ कोने पे जाके गली के कोने पे पीएमटी लगी होगी, वहां से फिर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो वोल्टेज 2 जगह रिड्यूस होता है, एक सब स्टेशन में और एक पीएमटी में। व्हेन वी टॉक अबाउट ये सारा काम ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर का तो थोड़ा सा काम है, बस बिजली पैदा हो गई, उसको मैनेज करना, हमारे घर तक पहुंचाना, ये मेन काम ट्रांसफार्मर का है। When we talk about transformer, लिखिएगा, राइट डाउन। बेटा ट्रांसफार्मर में, सॉरी एसी जनरेटर में स्पीड डबल होने से क्या होता है और नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने से क्या होता है। यहाँ पर एसी ऐड होता है, एसी जनरेटर यहाँ तक ही है, ये कंप्लीट एसी जनरेटर है जो हमने डिस्कस किया है, सही है। इसके 2 केसेस के बाद ये मैं सब आपको पीडीएफ दूंगा, कंप्लीट हो जाए फिर सब पीडीएफ दूंगा, पूरा पीडीएफ मैग्नेटिज्म से लेके, कंप्लीट पीडीएफ मैग्नेटिज्म से लेके ट्रांसफार्मर के बाद सीआरओ तक मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। अभी सुने, ट्रांसफार्मर है क्या, राइट डाउन। ट्रांसफार्मर, it is a device which converts low input voltage to high output voltage, और अगर हाई इनपुट हो, हाई इनपुट वोल्टेज टू लो आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रांसफार्मर को मैं दिखाता हूँ होता क्या है एक्चुअली।
ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ये these are iron plates. These are thin iron plates which are separated from each other using lamination. जैसे लेमिनेशन किसे कहते हैं? प्लास्टिक कोटिंग जैसे होती है ना, लेमिनेशन कहलाती है। ऐसे ही मेटल की लेमिनेशन होती है कि मेटल के ऊपर आप पेंट कोट कर देते हैं। तुम्हारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो है वो उसकी आउटर मेटल केसिंग जो है वो लेमिनेटेड है, पेंट हुआ है ना उस पर। माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, सॉरी हाँ वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, ये लेमिनेटेड है, पेंट हुआ है ऊपर। ये चेयर मेटल की आपको नज़र आ रही है, ब्लैक कलर की। अगर मैं चेयर का इसमें से कलर हटा दूं तो अंदर से मेटल नज़र आएगा, कहीं कहीं देखो निकल रहा है। तो ये जो ऊपर कलर किया हुआ है इसको कहते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन मीन्स पेंट। किसी ने कहा मुझसे ट्रांसफार्मर बनाना है। मैंने कहा जाओ किसी वेल्डर की दुकान पे, उससे कहो लोहे की प्लेटें दे, वो लोहे की प्लेटें जिससे लोहे के दरवाजे बनते हैं। मैंने कहा छोटे छोटे स्क्वायर पीस में लोहे की प्लेटें कटवाओ, बहुत सारी, 100-200 पतली पतली, और उन 100-200 प्लेटों को अलग अलग पतली पतली कटवाने के बाद उसको बीच में से हॉलो करवा लो, बीच में से भी कटवा लो। प्लीज़ लिसन एंड लिसन केयरफुली। अब ये साइड में आपका सारा मेटल है ना, ये आयरन है, आयरन है, आयरन है, क्योंकि आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने कहा कि ऐसी 100 प्लेटें बनवा लो पतली पतली, छोटे से साइज की। इसके बाद जाके जाओ पेंटर के पास जो कार पेंट करता है, डेंटर पेंटर के पास जाओ। उस पेंटर से कहो कि इन सबको कलर कर दे, जो गाड़ी का कलर इस्तेमाल होता है, कलर करा दो सबको। जब सारी कलर हो जाएं तो कलर होने के बाद ये सब एक दूसरे से अब सेपरेट हो गई। जब सारे कलर हो जाएं तो इनको ड्राई होने के बाद फिर दोबारा सबको आपस में मिला दो, और फिर एक काम करो, सबको आपस में ज्वाइन करने के बाद एक कॉपर वायर को एक तरफ लपेटो, सुनो गौर से, दूसरे कॉपर वायर को दूसरी तरफ लपेटो। खास बात, यहां से बैटरी को कनेक्ट करो और यहां से बल्ब को कनेक्ट करो। जैसे ही बैटरी को यहां स्विच करोगे क्लोज, ये बल्ब ऑन होगा। फिजिकली इनमें कनेक्शन नहीं है। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज वॉट ट्रांसफॉर्मर इज। कि सुने मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई एक प्रॉपर प्रैक्टिकल समझना। एक मेरे पास ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को मैंने वूंड किया और फिर मैंने इसको यहाँ पर स्विच लगाया और मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। सुनते जाइएगा और गौर से देखते जाइएगा। यहाँ लगा हुआ है स्विच एस। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक दूसरा वायर है और एक सेकेंड वायर को आपने फॉर एग्जाम्पल राइट साइड से कनेक्ट किया, दूसरे वायर को आपने एक और अलग सेपरेट कॉइल बनाया इस वायर का और इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब से। लिसन केयरफुली, बल्ब से। कमाल क्या है, खास बात क्या है?
कि भाई इस वायर का कनेक्शन तो यहां से जुड़ गया, रेड वाले वायर का कनेक्शन यहां से जुड़ गया। नाउ आई एम सेइंग कि जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे, मैं क्या कह रहा हूं, अजीब सी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब तुम स्विच को क्लोज करोगे तो करंट यहां फ्लो करेगा, करंट यहां फ्लो करेगा, है ना, और बल्ब ये ऑन होगा। ये कैसी बात है, इनमें तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लोज इन दिस कॉइल, बट लैंप ऑन द अदर कॉइल। ये जो स्ट्रेंज चीज है, ये स्ट्रेंज नहीं है बल्कि ये फिजिक्स है। बिकॉज इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करेगा वो करेगा आयरन पीस, वही तो है आयरन पीस। मैंने कहा कि ये देखो, ये मेरे पास एक्चुअली ये आयरन है और इस आयरन के ये आयरन है, मेन काम इसका है। और यही बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब करंट यहां से फ्लो करेगा, अब मेरी बात सुनो, जब ये करंट, अब मैं वर्किंग बता रहा हूं, जब ये करंट बेटा यहां से फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, अपना सीधा हाथ अगर राइट साइड पे करोगे तो करंट आगे से पीछे जा रहा है, थंब ऊपर जा रही है, थंब ऊपर, राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर पहला टर्न वायर का ऊपर से है और ये आगे से पीछे जा रहा है, मतलब ऊपर से है और आगे से पीछे जा रहा है, तो आप कहेंगे ऊपर से पीछे मतलब थंब ऊपर है, थंब ऊपर का मतलब यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है। सुनो, खामोश हो जाओ, सुनो। करंट फ्लो करने से एक कॉइल में, ये जो लेफ्ट वाला कॉइल है जो तुमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और यहां जो बैटरी से वोल्टेज आता है इसको प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं। और इस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इनको नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कहते हैं। बल्ब जितने वोल्टेज से ऑन होता है इसको सेकेंडरी वोल्टेज, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को NS, सेकेंडरी कॉइल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। when current flows in the primary coil, then the primary coil becomes electromagnet. Primary coil becomes electromagnet, creating north and south pole. लेफ्ट साइड पर बिल्कुल प्योर लॉजिकल टॉपिक है, इसलिए 100% अटेंशन चाहिए तुम्हारी। अभी राइट साइड को छोड़ दो, सिर्फ लेफ्ट साइड को सोचो। लेफ्ट साइड में मैं कह रहा हूं कि जब लेफ्ट साइड में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, having north pole at the top and south pole at the bottom. और जब ये मैग्नेट बन गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ से साउथ जाती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये येलो शेड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी। लिसन केयरफुली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, travel from north to south in this way, clockwise. जब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएंगी तो देखो, फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो आपसे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो मैं ये पिंक वाली लाइन
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने ड्रॉ की, पिंक वाली लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी जो ट्रैवल करेगी नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब ऐसे, यस और नो? As the magnetic fields travel from north to south, then these magnetic fields enter into the secondary coil. ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से सेकेंडरी कॉइल में एंटर हो रही हैं, और जब सेकेंडरी कॉइल में एंटर हो रही हैं तो ड्यू टू द चेंज in the magnetic field lines cut, EMF induced in this coil as the lamp is switched on. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, अदरवाइज मुझे बताओ यहाँ मैग्नेट एंटर हो रहा था तब भी तो करंट इंड्यूस हुआ था। स्टार्ट तो हमने यहीं से किया था। ये चीज़ और वो चीज़ सेम है, फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ। सुने, यहाँ आप कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बिल्कुल पहला लेक्चर, अटेंटिव सुनना। तुम यहाँ कह रहे थे कि सर मैग्नेट मूव हो रहा है, मुझे बताओ मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है बेटा, यस और नो? अब फ़र्क समझना। लेंज़ेस लॉ ने कहा था या फैराडेज लॉ ने कहा था जब मैग्नेट एंटर होगा तो ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट, करंट इज इंड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, यस और नो? अब मैं कह रहा हूँ भाई मैग्नेट नहीं है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जुमला चेंज कर लो। When magnetic field lines enter into the coil, then would also be EMF induced, yes or no? भले मैग्नेट पूरा नहीं जा रहा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एंटर हो रही हैं। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ लेजिट पॉइंट। इसका मतलब आप कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लैंप स्विच ऑन, ये लैंप ऑन हो जाएगा। मेन ट्रांसफॉर्मर का ये है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं, मगर मेन ट्रांसफॉर्मर की फंक्शन ये है। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर, तो हम कहते हैं कि राइट डाउन, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ thin iron plates which are laminated copper wire is wounded on opposite side to make two coils. Primary coil is the one which connects to input supply. Secondary coil is the one which connects to output.
at output, comma, galvanometer, ammeter, voltmeter or lamp is attached. Voltage in the primary coil equals to Vp ब्रैकेट फ्रॉम इनपुट सप्लाई. ये Vp वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का है जो एक्चुअली बैटरी सप्लाई कर रही है. वोल्टेज in the secondary coil is Vs, जो कि आउटपुट का वोल्टेज कहलाता है. Voltage in the primary coil divided by voltage in the secondary coil equals to number of turns in primary divided by number of turns in secondary. ये रेशो है. NP क्या है पहले बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. VP क्या है, वोल्टेज इन प्राइमरी. VS क्या है, वोल्टेज इन सेकेंडरी. हम आगे इसको क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर अप्लाई करेंगे. अभी देखें, मेन है वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर दो हैं. नंबर 1, डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई का मतलब ये आपके पास आउटपुट लैंप है, बल्ब है. ये बैटरी दी हुई है. डीसी का मतलब बैटरी है. ये अब इस बैटरी के साथ यहाँ पर स्विच है. अब डीसी सप्लाई में क्या होता है, मुझे बताओ क्या होगा. सबसे पहले अगर मैं स्विच को क्लोज करूंगा, एज द स्विच इज क्लोज्ड, डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट है ना. सोचो ज़रा, जब मैंने तुम्हें डायरेक्ट करंट बताया था तो मैंने कहा था जब आप डायरेक्ट करंट की बात करते हैं बेटा, तो डायरेक्ट करंट होता है कि वन डायरेक्शनल करंट एंड कांस्टेंट करंट. एसी होता है टू डायरेक्शनल करंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड वेरिएबल करंट या वेरिएबल वोल्टेज. सुनो, जब आप डीसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं डीसी वो वोल्टेज है या करंट है जिसमें वोल्टेज बढ़ेगा
और जब कांस्टेंट हो जाएगा एक जगह तो उसके बाद कांस्टेंट ही रहेगा. Now listen. As the switch is closed, current in the primary coil increases. Current in the primary coil increases from 0 to maximum. सामने देखो, एक मिनट सामने देखना. मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा यहां से यहां करंट बढ़ेगा. ये करंट है 0 से मैक्सिमम. यस और नो? मगर व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? ये जो आउटपुट पर बल्ब लगा हुआ है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बिजली पैदा हो रही है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करती है चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट पे. तो इसका मतलब जितनी देर ब्लू वाला शेड होगा उतनी देर बल्ब जलेगा, जितनी देर ऑरेंज होगा उतनी देर बल्ब ऑफ हो जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो गई. और जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो करंट इंड्यूस नहीं होता. सुने मैं क्या कह रहा हूं? एज द स्विच इज क्लोज्ड, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. So the magnetic field lines from primary to secondary magnetic field lines. So the magnetic field lines from primary to secondary coil also increases from 0 to maximum. Due to the change in the magnetic field lines cut. Due to the change in the magnetic field lines cut, in the secondary coil, comma, EMF or current is induced in the secondary coil. So lamp switches on. I am saying here that due to the change in the magnetic field lines cut, lamp switches on. लैम्प कब स्विच होता है भाई? जब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होती हैं. और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट क्यों हो रही हैं? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल. Current in the primary coil increases from 0 to maximum. Current in the primary coil increases from 0 to maximum. जिसकी वजह से चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट है.
और अगर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट है तो लैम्प स्विच ऑन। अब वो आपसे कहेगा व्हाट हैपन्स इफ द लैम्प रिमेन स्विच्ड ऑन। अब व्हाट हैपन्स इफ द स्विच रिमेन क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज ही है तो क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे ये पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद करंट में चेंज आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ से करंट कांस्टेंट हो गया। तो अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से यहाँ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले बढ़ रही थीं वो भी कांस्टेंट हो गई। और जब यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही हैं तो फिर नो चेंज। बेटा इसका कनेक्शन फिर दोबारा दिखा रहा हूँ कि इसका कनेक्शन इसी से है जो मैं शुरू में बात कर रहा था। याद करें हमने यहाँ क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैग्नेट एंटर हो रहा है 1 2 3 4 5 चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। वापस निकालो 5 4 3 2 1 चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। अब अगर याद करें ये मैग्नेट के अगर ये अंदर ही था और ऐसे ही मूव करे, तुम कहो 100 फील्ड लाइंस या 50 फील्ड लाइंस या 20 फील्ड लाइंस कट हो रही हैं तो भाई 20 20 20 20 मुस्तकिल सेम हो रही है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग ज़ीरो ही होगी, यानी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ या करंट बेटा जब इंड्यूस होता है जब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो। तो फिर यहां पर आप ये कहेंगे कि व्हेन स्विच रिमेन क्लोज्ड, लिखना अगला पॉइंट, when switch remain closed, comma, lamp switch is off because there is no change अगर स्विच क्लोज हो गया तो फिर देर इज़ नो चेंज इन द वोल्टेज और करंट इन प्राइमरी कॉइल causing no change in the magnetic field lines cut। अगर no change है in the magnetic field lines cut, so current does not induce in secondary coil। अब करंट इंड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि अगर स्विच रिमेन क्लोज्ड है, स्विच रिमेन क्लोज्ड, देन नो चेंज इन द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट, करंट डज नॉट इंड्यूस। ये की पॉइंट्स हैं। अब मुझे बताओ स्विच क्लोज ओपन कर दो, दोबारा ओपन कर दो, अब डिस्कनेक्ट करो, तो टेल मी, ये वेव देखना ज़रा और दिमाग लगाना जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुमने स्विच पहले क्लोज किया था, है ना, तो प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ा था और तुमने कहा कि सर अगर करंट बढ़ेगा तो चेंज होगा, चेंज की वजह से करंट पैदा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब मैं कह रहा हूँ एक बात बताओ, एक जगह पर लाकर मैं अब स्विच को ओपन कर देता हूँ, यानी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट को, तो टेल मी, डिस्कनेक्ट होने पर ये स्विच को ओपन कर दो, क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने पर क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, ऐसा नो। और डिक्रीज होने का मतलब फिर दोबारा क्या, बल्ब क्या होगा?
फिर ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन होगा? क्योंकि अगेन डिक्रीज़ होने पर भी तो चेंज ही है, डिक्रीज़ होना भी तो चेंज ही है। जैसे लेंसेज फैराडे लॉ में मैं मैग्नेट को एंटर कर रहा हूँ तो करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेट को बाहर निकाल रहा हूँ तो करंट इंड्यूस होगा। यस और नो? क्योंकि अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। इट मीन्स नाउ when switch is opened, then lamp again switches on. For very short time, because as current decreases, आपने स्विच ऑन कर दिया तो इसका ओपन कर दिया। अगर स्विच ओपन कर दिया तो करंट डिक्रीज होगा। एज करंट डिक्रीजेस then due to change in the magnetic field lines cut, comma, again current is induced in secondary coil in opposite direction. जब स्विच को ओपन करेंगे तो करंट अगेन इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगेन चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट है। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट है तो करंट अगेन इंड्यूस हो जाएगा और लैंप दोबारा जल जाएगा। तो लैंप तो नहीं बताएगा कि करंट पॉजिटिव या नेगेटिव, मगर अगर गैल्वेनोमीटर होता तो फिर स्विच को क्लोज करने में अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट पर होती तो स्विच को ऑफ करने में गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट पर होती, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सुनो, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये लैंप, समझो, ये लैंप मुस्तकिल ऑन रहे। क्या करूं? या तो स्विच को ऑन ऑफ करते रहो, ऑन ऑफ करते रहो, ऑन ऑफ करते रहो, ताकि करंट बढ़े फिर करंट कम हो, करंट बढ़े फिर करंट कम हो, या फिर क्या करें? एसी सप्लाई करें। दिस इज द पॉइंट। इज इट क्लियर? To keep the lamp on, to keep the lamp on, either switch on and off regularly or use AC supply at input. मतलब बेटा ये कि मुझे बताओ, ये ट्रांसफार्मर है। अब सेम ट्रांसफार्मर में यही मेन फ़र्क वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, कि इस ट्रांसफार्मर में अगर मैं एक चेंज ये कर दूं, देखो सामने सेम ट्रांसफार्मर है, बस मैं चेंज ये करूं कि यहां से
अगर ये कनेक्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड एसी। सिंपल एसी का है ना ये। तो फिर वो क्वेश्चन करेगा कि हाउ एसी is used to switch on lamp permanently. तो फिर याद रखें कि व्हेन AC supplied means voltage changes regularly, then there is a continuous change in the magnetic field lines transferred from primary to secondary coil there is a continuous change in the magnetic field lines transferred from primary to secondary coil. And in secondary coil due to the continuous change in the magnetic field lines cut. Due to the continuous change in the magnetic field lines cut, comma, current or EMF induced continuously so lamp remains switches on. So lamp remain switches on. लैम्प कंटिन्यू ऑन रहेगा। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि एसी लगाने का फ़ायदा क्या है ट्रांसफार्मर के इनपुट पे। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर के इनपुट पे एसी का मतलब ये है कि कंटिन्यू तुम्हें करंट मिलेगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स आती हैं बेटा। These are called the types of transformer. Depending upon the voltage, there are two types of transformer. Listen, सामने देखो, two types of transformer. ये क्या है? स्टेप डाउन, जो हाई वोल्टेज को अब कम वोल्टेज में ट्रांसफर करेगा।
ये क्या है? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर।